Okay, students, in the last lecture, we have just discussed this FCFS scheduling algorithm, and we have also did this numerical, and we have seen that how we have to solve these numericals, how we have to make the Gantt chart, and how we have to calculate the waiting time for individual processes, and how we have to calculate the average waiting time, which is the a question which might be asked from us in the exam. So this is how we have to tackle the things. But each and every algorithm is different. So in today's lecture, we are going to focus on another interesting algorithm, CPU scheduling algorithm, whose name is shortest job first, and we will see how to solve the numericals for the preemptive version as well as for non-preemptive version. And I hope this concept of solving the numericals and how to make Gantt chart is somewhat clear to you. And today we are going to learn something new in the case of preemptive scheduling, how exactly we have to make the Gantt chart. And I will just make a complete table for you on the blackboard, and following that particular scenario, you will always give the correct answer. You will not make any mistake if you are going to understand the concept clearly. And I will just explain you each and everything, how to make Gantt chart in the case of preemptive, and how to make the table, and how many columns will be there, and from those columns how you can easily calculate finally the average waiting time. So let's continue with the shortest job first. So the very first algorithm which we have studied was first come first serve scheduling, and that was only non-preemptive in nature. And non-preemptive simply means once a process is allocated to the CPU, the process will be entirely executed. The time it requires, the burst time it requires on the CPU, it will just completely execute, and after that it will just simply leave the system. And here we have the shortest job first, the second scheduling algorithm, and as the name suggests, shortest job first. So FCFS के case में what we have discussed, that there was a convoy effect, that if any process which is having the long CPU burst time, it arrives just before the processes having short CPU burst time, then the processes with short CPU burst time have to wait for very long, and overall average waiting time is very high in that particular case. So this is a kind of algorithm which says, or which better to say, which prevents the convoy effect, which says शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. जिस भी प्रोसेस का सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम है, सबसे पहले उसको सीपीयू एलोकेट करो, फिर वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा. फिर जो बचे हुए प्रोसेसेस हैं, उन सारे प्रोसेसेस में से जिस प्रोसेस का सबसे लेस सीपीयू बर्स्ट टाइम है, नेक्स्ट उसको सीपीयू अलॉट करो. सो एज नेम से ही पता चल रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. जो जॉब सबसे छोटी है आउट ऑफ द अवेलेबल जॉब्स, तो सबसे छोटे वाली जॉब को, यानी कि जिस प्रोसेस का, जिस जॉब का सीपीयू बर्स्ट टाइम सबसे कम है, वन बाय वन उन प्रोसेसेस को सीपीयू एलोकेट करते जाओ. सो shortest job first scheduling says it is associated with each process the length of its next CPU burst, and whenever the CPU is available, it is assigned to the process that has the smallest next CPU burst. So if we are having 5 processes P1 to P5, so in the case of non-preemptive, जिस भी प्रोसेस का सबसे कम सीपीयू बर्स्ट टाइम है, सबसे पहले वो प्रोसेस एलोकेट हो जाएगा सीपीयू को, वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा. देन रिमेनिंग 4 में से जिसका सबसे कम होगा वो एलोकेट हो जाएगा, फिर वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, वो एग्जिट कर जाएगा. देन 3 में से जो भी शॉर्टेस्ट होगा, सो दिस सिनेरियो विल बी फॉलोड इन दिस पर्टिकुलर केस. एंड इफ the CPU burst time of the next 2 processes are exactly same, then in that particular case the FCFS scheduling algorithm will be used to break the tie. तो अगर कोई 2 processes ऐसे आ जाएंगे जिनका दोनों का CPU burst time shortest और same है, तो फिर हम क्या देखेंगे कि कौन सा process RAM में पहले आया था. Then we will apply just FCFS and we will choose the process as according to the FCFS policy. So an appropriate term for this scheduling method would be the shortest next CPU burst algorithm, because the scheduling here depends upon the length of the next CPU burst of a process rather than its total length. And this is very important. SJF is optimal out of all available algorithms for
CPU scheduling, this shortest job first algorithm gives the minimum average waiting time for a given set of processes. तो अगर आप कोई एक एग्जांपल लेंगे और उस एक एग्जांपल पे 5 अलग-अलग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लगाएंगे तो हमेशा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आपको बेस्ट रिजल्ट देगी. इस केस में आपका एवरेज वेटिंग टाइम हमेशा सबसे मिनिमम आएगा. सो दिस इज द ऑप्टिमल एल्गोरिथम, बेस्ट algorithm among all the available algorithms. But the problem with this SGF is it is not possible to know the exact length or the CPU burst time of the next process. So we will deal how we have to solve these things. So this is the very first example. So all of you can just take a pen and paper with you and we will just solve 2 or 3 numericals. So I'm just giving you 2 minutes. Just have a paper pen with you to make the Gantt chart and to deal with the things. And one example I am also going to discuss with you, so you can also just solve it. So very first example is very simple and I'm just discussing it. This is the simplest case of shortest job first, which is non-preemptive. तो अगर हम shortest job first बोल रहे हैं, so it is always non-preemptive, just like FCFS. And in non-preemptive, we know that once our process is allocated, it will be completely executed. So here is the question. You can see we have an example of SJF. Now we have 4 different processes, P1, P2, P3, P4, and the burst time of 4 processes is also given along with the processes. So the process P1 requires 6 milliseconds to execute on the CPU, P2 requires 8, P3 requires 7, and process P4 requires 3 milliseconds. Now, as this is the case of shortest job first as well as non-preemptive version, so how we have to make the Gantt chart? So shortest job first, as the name suggests, out of those 4 processes, सबसे पहले CPU उस process को मिलेगा जिसका burst time सबसे कम होगा, वो completely execute होके exit करेगा. Then जितने processes रह जाएंगे उनमें से जिसका सबसे shortest time होगा, that will be executed. Then that process will exit. Then similarly in the last 2 processes जिसका भी CPU burst time सबसे छोटा है, we will allocate CPU to that particular process. So I hope the Gantt chart is also very much clear to you. So out of all these processes, they are all in the ready state, they are all in the RAM, but now we have applied the shortest job first algorithm. So CPU scheduler को क्या देखना है? It have to count the, or it have to check the burst time for all the processes. So सबसे कम CPU burst time किसका है भाई? बताओ जल्दी से. P1, P2, P4. P4. Okay, so P4 process is having the shortest CPU burst time among all the available processes currently. So सबसे पहले CPU allocate होगा process P4 को. 0 टाइम पे P4 execute होना start हो जाएगा और 3 milliseconds तक P4 execute होगा. Execute होने के बाद 3 milliseconds होते ही P4 exit कर जाएगा system. Now we are having only 3 processes in the ready state, P1, P2, P3. Now whose turn will be next? P1. Fine. Now P4 is not there, so we have only P1, P2, and P3. And P1 requires 6 milliseconds, P2 requires 8 milliseconds, and P3 requires 7 milliseconds. So P1 requires the least time on the CPU, so the CPU will be allocated to P1 next. So from 3 to 9, or better to say 4 to 9, this P1 process will get the CPU. It will complete its execution, it will complete its task, and it will exit the system. Now we will be having only 2 processes, P2 and P3, and from P2 and P3 we can clearly see P3 is having the shortest CPU burst time of 7 milliseconds. So P3 will be allocated the CPU for the next 7 seconds from 9 to 16. And in the last, the process P2 is having the largest CPU burst time among the available processes. और we can say अब तो सिर्फ P2 ही रह गया है हमारे ready state में, तो सबसे last में P2 को CPU allocate हो जाएगा and P2 is going to execute for 8 milliseconds. So from 16 to 24, the process P2 will execute. So very first thing,
The last digit which we are getting here is 24, and we have to sum the burst time to check whether it is 24 or not. And if both the digits are same, that means the Gantt chart is correct. So 6 plus 8 is 14, 14 plus 7 is 21, 21 plus 3 is 24. So 24 is the sum of CPU burst time, and 24 we are getting at the rightmost end of the Gantt chart. Now, what about the waiting time or the average waiting time? As we have learned in the last lecture, to calculate the average waiting time, we have to calculate the individual waiting time for each processes. So now we are having 4 processes here, P1, P2, P3, P4. So what is the waiting time of P1? 3. 3, very good. So as we know, कैसे हमें देखना है, हमने लास्ट लेक्चर में सीखा भी था। तो P1 के ब्लॉक पे जाएंगे, उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली डिजिट होगी वो हमें क्या बताती है, वेटिंग टाइम बताती है, और जो राइट हैंड साइड वाली होती है वो हमें कंप्लीशन टाइम बताती है। उसकी भी हम अभी आज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल में। सो सबसे पहले देखो P4 चला था, तो P4 3 मिली सेकेंड्स चला, और P4 के बाद P1 का टर्न आ गया, तो दैट मीन्स P1 प्रोसेस को 3 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ा जब तक प्रोसेस P4 चल रहा था। सो द वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P1 इज 3, वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस P2 का नंबर सबसे लास्ट में आया बिकॉज इसका बर्स्ट टाइम सबसे ज्यादा था, तो 16 मिली सेकेंड्स, 3 प्लस 6 प्लस 7, 16 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ेगा प्रोसेस P2 को। P3 की बात करें तो P3 को 9 मिली सेकेंड्स जब तक P4 और P1 नहीं एग्जीक्यूट हो जाते, 3 प्लस 6, तो P3 को 9 मिली सेकेंड्स वेट करना पड़ा। लेकिन P4 जैसे ही रैम में आया 0 मिली सेकेंड 0 टाइम पे, तो साथ के साथ ही P4 को CPU एलोकेट हो गया बिकॉज P4 was having the shortest CPU burst time among the available processes. So the waiting time for process P1 is 0. So to calculate the average waiting time, we will add the individual waiting time of P1 plus P2 plus P3 plus P4. Now कितने से डिवाइड करेंगे हम एवरेज वेटिंग टाइम के लिए? 4 से। 4. Now we have 4 different processes in the ready state. In the previous example, in the FCFS, we were having 3 processes, but now we are having P1, P2, P3, P4. So 0 plus 3 plus 9 plus 16, or better to say, the waiting time of P1 was 3. So 3 plus 16 plus 9 plus 0 is equal to 28. 28 divided by 4 is 7. So 7 is the एवरेज वेटिंग टाइम फॉर दिस पर्टिकुलर गिवन सिनेरियो। तो भाई हमेशा SJF आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम देता है अमंग ऑल द अवेलेबल CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो आप सब लोग एज अ होमवर्क इस पर्टिकुलर एग्जांपल को FCFS से भी सॉल्व करके देख सकते हो कि पहले P1 आया, देन P2 आया, देन P3 आया, देन P4 आया। तो आप देख लेना मैक्सिमम केसेस में आपका जो भी एवरेज वेटिंग टाइम है वो 7 से ज्यादा ही आएगा। सो यू कैन जस्ट डू इट एज अ प्रैक्टिस। सो दिस वाज द सिंपलेस्ट एग्जांपल ऑफ SJF वेयर वी यूज्ड टू have or we used to consider the burst time of the processes। जिस प्रोसेस को CPU पर सबसे कम टाइम चाहिए उस प्रोसेस को हम सबसे पहले एलोकेट करा देते हैं, एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर ऑल द प्रोसेसेस, एंड वन बाय वन एक एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होके फिनिश होता जाता है। देन वी अप्लाई द सेम सिनेरियो टू द अवेलेबल प्रोसेसेस, एंड SJF is always non-preemptive, and we will talk about the preemptive version of SJF, which is known as SRTF, which stands for shortest remaining time first. So I'm just going to discuss that. So I hope this example is clear to you. It is very simple example. हमें एक processes given है, burst time given है, बस हमें Gantt chart बनाना स्टार्ट करना है। SJF हमेशा ही नॉन प्रीएम्प्टिव होती है। हमें चेक करना है कि कौन से प्रोसेस का सबसे कम CPU बर्स्ट टाइम है, उसको सबसे पहले एलोकेट कर देना है CPU। उसके कंप्लीशन के बाद फिर से हमें यही चेक करते जाना है बार बार सेट ऑफ अवेलेबल प्रोसेसेस के लिए। सो इन दिस मैनर वी कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट द एवरेज वेटिंग टाइम। मूविंग फर्दर, दिस इज the shortest remaining time first. So the very first line, the SJF algorithm can be either preemptive
or it can be non-preemptive. So last lecture में for FCFS I have told you FCFS कभी भी preemptive नहीं होती, FCFS हमेशा ही non-preemptive होती है। एक बार CPU को process allocate हो जाता है FCFS के केस में, non-preemptive के केस में तो वो process पूरा execute होता है जितना उसको time चाहिए, बीच में हम उस process से CPU को खाली नहीं कराते। But now here first time we are studying the concept of preemptive scheduling. So SJF algorithm, which is shortest job first, it can be either preemptive or it can be non-preemptive. अभी जो हमने example देखा that was the example of non-preemptive because एक बार देखो P4 को CPU allocate हुआ वो पूरे 3 मिलीसेकंड्स के लिए चला, उसके बाद P1 को CPU allocate हुआ वो पूरे 6 मिलीसेकंड्स के लिए चला, then P3 पूरा 7 चला and P2 पूरा 8 एक ही बार में चला, हमने बीच में से CPU को vacate नहीं किया। But a preemptive SJF algorithm will preempt the currently executing process, whereas a non-preemptive SJF algorithm will allow the currently running process to finish its CPU burst. So this is the major difference between preemptive and non-preemptive scheduling. Preemptive के केस में हो सकता है कि हम बीच में से ही vacate करा दें, CPU को preempt करा दें, एग्जीक्यूट ना हो प्रोसेस कंप्लीटली। अगर सपोज प्रोसेस को 10 मिलीसेकंड चाहिए तो ऐसा भी हो सकता है कि एक बार में वो सिर्फ 5 मिलीसेकंड चले, फिर वो वापस रेडी स्टेट में चला जाए और उसके जो बाकी के 5 मिलीसेकंड्स हैं वो उसको बाद में सीपीयू एलोकेट होगा। तो अभी हम देखते हैं कैसे करेंगे उसको। एंड प्रीएम्प्टिव एसजेएफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज आल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेन फर्स्ट शेड्यूलिंग। सो भाई दिस इज द मेजर वर्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज। अगर हम सिर्फ एसजेएफ की बात कर रहे हैं तो एसजेएफ हमेशा नॉन प्रीएम्प्टिव है, लेकिन अगर हम एसआरटीएफ बोल रहे हैं या फिर प्रीएम्प्टिव एसजेएफ बोल रहे हैं, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रीएम्प्टिव वर्जन, एंड प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ एसजेएफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। Okay, so this is the example 8495. So I am just sharing the board for the same example and I will explain on the board how to solve this. Okay, so the board is visible to all of you? Yes, sir. Okay. Okay, so this was the question which is given in the slide. I will just go to the slide later on, but first of all, I will just let you know how we have to solve this kind of question. थोड़ा सा complex है, थोड़ा सा tricky है, but if you understand it, then you will not make any mistake. So this is the question which is given in the book also and in your slide also. We have a process. अभी तक देखो हमें बर्स्ट टाइम मिल रहा था प्रोसेस के साथ। दिस इज द फर्स्ट केस वेयर हमें अराइवल टाइम भी मिला है। तो भाई जब भी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग होगी तो आपको साथ में अराइवल टाइम भी गिवन होगा। सो जस्ट लेट मी शेयर द स्लाइड वंस अगेन सो दैट यू कैन सी द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। Okay, so this is the question. We have 4 processes P1, P2, P3, P4. Then we have now arrival time is associated 0, 1, 2, 3, and we have burst time 8, 4, 9, 5. And arrival time means process P1 0 millisecond पर RAM में आ गया, process P2 1 millisecond पर आया, यानी कि after 1 millisecond of P1, P3 process 2 milliseconds पे आया और P4 process 3 milliseconds पे आया। Okay, so this is the scenario and this is the same example which I have written here. Okay, so एक बात बताओ पहले सब लोग, अगर यहाँ पे arrival time नहीं होता, सिंपल SJF की बात कर रहा हूँ मैं, नॉन प्रीएम्प्टिव, तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है अकॉर्डिंग टू शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट? P2. ओके, वेरी गुड। सो अगर हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव वर्जन होता, हमारे पास अराइवल टाइम नहीं है, देन हमें शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट लगानी है, तो हमें क्या करना था? इन चारों में से सबसे पहले जिसका सबसे कम था सीपीयू बर्स्ट टाइम, सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट होता, आफ्टर दैट P4 एग्जीक्यूट होता, देन P1 एग्जीक्यूट होता एंड लास्ट में P3 एग्जीक्यूट होता। यही सिनेरियो रहता है हमारा अगर सिंपल एसजेएफ होता। नाउ वी हैव शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट वेयर प्रीएम्पशन इज देयर, एंड जब भी प्रीएम्पशन होगी जस्ट रिमेंबर इट, आपको एक अराइवल टाइम गिवन होगा। नाउ प्रोसेस P1 अराइव्स इन द रेडी स्टेट एट 0 मिलीसेकंड, सबसे पहले आया, उसके बाद P2 आया, उसके बाद P3 आया एंड लास्ट में
P4 आया. Is this clear to all of you? यहाँ तक सबको क्लियर है? एक नया कॉलम ऐड हो गया, अराइवल टाइम एंड अराइवल टाइम गिवन है. अच्छा, अब कोई बताएगा कि इसमें से सबसे पहले कौन सा प्रोसेस चलेगा या चलना चाहिए? Which process will execute first? If anyone can tell or at least try. Shortest remaining time first. सेम कंसेप्ट लगाना है, जिस प्रोसेस का सबसे कम सीपीयू बर्स्ट टाइम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए. तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा प्रोसेस चलना चाहिए सबसे पहले? P2. P2. तो भाई इसी बात का हमें ध्यान रखना है. P2 0 मिलीसेकंड से हमारा गैंट चार्ट स्टार्ट होता है. सिनेरियो हमारा शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट का है, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेटली P2 का बर्स्ट टाइम सबसे कम है, सबसे लीस्ट है, तो P2 चलना चाहिए था. बट द प्रॉब्लम विद दिस सिनेरियो इज दैट आवर गैंट चार्ट ऑलवेज स्टार्ट्स विद 0 टाइम 0 मिलीसेकंड, और 0 मिलीसेकंड पे प्रोसेस P2 अभी तक रैम में आया ही नहीं है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू व्हाट इज द कंसेप्ट? सबसे पहले 0 मिलीसेकंड पर रैम में सिर्फ एक ही प्रोसेस है, ओनली P1 अराइव्स एट 0 मिलीसेकंड. Is it clear? तो भाई सबसे पहले जिसका अराइवल टाइम 0 होगा, हमें उस केस में, इस केस में उसी प्रोसेस को चलाना पड़ेगा. बट कितनी देर तक चलेगा P1? नाउ दिस इज द क्वेश्चन. अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव होता देन डेफिनेटली ये पूरा 8 मिलीसेकंड्स तक एग्जीक्यूट होता. बट नाउ दिस इज प्रीएम्प्टिव. प्रीएम्प्टिव मींस हम कभी भी बीच में से प्रोसेस से सीपीयू को वेकेट करा सकते हैं, वापस रेडी स्टेट में भेज सकते हैं. तो भाई मैं P1 को यहाँ कितने मिलीसेकंड तक चलाऊंगा? ओनली 1. व्हाई? कोई बता सकता है? क्योंकि सर अराइवल टाइम P2 का 1 है, इसकी वजह से, और उसका बर्स्ट टाइम कम है. यस. तो भाई जिसने भी आंसर दिया दैट इज क्वाइट क्लियर करेक्ट आंसर. तो जैसे ही 1 मिलीसेकंड हुए, रैम के अंदर एक और प्रोसेस आ गया, P2 प्रोसेस आ गया. नाउ 1 मिलीसेकंड के अंदर मेरे पास रैम के अंदर कितने प्रोसेसेस हो गए? P1 और P2. Isn't it? Now I have two processes. पहले 0 मिलीसेकंड में मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं थी, सिर्फ एक ही प्रोसेस रैम में था, सिर्फ P1 ही चलेगा. जैसे ही 1 मिलीसेकंड हुआ, प्रोसेस P2 आ गया. नाउ जो CPU बर्स्ट टाइम फॉर P1 है वो कितना रह गया? ये 1 मिलीसेकंड चल चुका है, प्रोसेस P1. Now the CPU burst time of P1 is 7 and P2 is 4. कौन सा छोटा है दोनों में से? 7 और 4 में से P2. तो भाई P2 चलेगा. तो P2 को हमने यहाँ पे चलाना है, कितनी देर तक चलाना है ये देखना पड़ेगा. देखो जैसे ही 2 मिलीसेकंड हो जाएंगे तो P3 भी आ जाएगा, और जैसे ही 3 मिलीसेकंड हो जाएंगे तब कौन आ जाएगा? P4 भी आ जाएगा. लेकिन जो इसका बर्स्ट टाइम है वो सबसे छोटा रहेगा. सो दैट मींस जो हमारा P2 प्रोसेस है वो पूरा 4 तक एग्जीक्यूट होगा. Is this clear to all of you? कैसे हमने किया ये? सबसे पहले अराइवल टाइम 0, सिर्फ P1 प्रोसेस ही आया था, लेकिन हमने उसको पूरा नहीं चलाया बिकॉज ऑफ प्रीएम्पशन. 1 मिलीसेकंड चलाते ही प्रोसेस P2 भी आ गया. प्रोसेस P2 जैसे ही आया तो इसका CPU बर्स्ट टाइम 4 था, इसका CPU बर्स्ट टाइम 7 था. सो 4 और 7 में से जो कम है वो 4 है, तो हमने P2 को चूज किया. लेकिन देखो 2 मिलीसेकंड होते ही ये भी आ जाएगा, 3 मिलीसेकंड होते ये भी आ जाएगा, लेकिन तब भी ये सबसे लीस्ट रहेगा अमंग ऑल द प्रोसेस कंप्लीटली. नाउ 5 मिलीसेकंड्स तक P2 चल गया, P2 कंप्लीट हो चुका, और बाकी सारे प्रोसेसेस भी रैम में आ चुके हैं. नाउ वी विल अप्लाई द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट. तो भाई अब इसके बाद आउट ऑफ P2 हमारा कंप्लीट हो चुका, आउट ऑफ 7, 9 एंड 5 व्हिच वन इज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट? तो भाई अब इसके बाद आउट ऑफ P2 हमारा कंप्लीट हो चुका, आउट ऑफ 7, 9 एंड 5 व्हिच वन इज शॉर्टेस्ट? P4. तो भाई हम P4 को चलाएंगे, और P4 को हम अब कंप्लीट चलाएंगे बिकॉज़ अब हमारे सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं. सो इट विल एग्जीक्यूट अप टू 10, एंड आफ्टर दैट वी विल बी हैविंग P1 will move up to 7 milliseconds बचे थे, so it will move up to 17, and in the last we have a process P3 will move up to 17 plus 9 which is 26.
So this is how the Gantt chart. This is how the Gantt chart will be made in this particular case. And can you check that 26? The total of the CPU burst time कितना है? Anyone can let me know? 26. 26. So the Gantt chart का जो सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन आया वहां पे हमें 26 मिला था और जो CPU बस टाइम पे जो सम है वो भी 26 है. That means this is the correct scenario and this is the simplest case of preemptive. इससे भी complex आ सकता है. We will discuss all the things. But let me know if you have any confusion how I have created this Gantt chart. P1 को हमने एक ही मिली सेकेंड क्यों दिया, P2 पूरा क्यों चल गया, फिर P4, P1, P3 द्वारा चले. Anyone, any doubt, or if you want me to explain again also, just let me know. No sir. Clear है? ओके तो भाई जीरोथ टाइम पे सिर्फ P1 ही आया था तो हमें सबसे पहले P1 को ही चलाना पड़ेगा. ऑल्दो P2 का CPU बर्स्ट टाइम सबसे कम था लेकिन जीरोथ टाइम पे प्रोसेस P2 रैम में था ही नहीं तो हम इसे CPU को नहीं दे सकते. P1 को हमने 1 मिलीसेकंड ही चलाया, 1 मिलीसेकंड चलाते ही प्रोसेस P2 रैम में आ गया और उसका CPU बर्स्ट टाइम P1 के बचे हुए CPU बर्स्ट टाइम से कम था, 7 से कम था 4. तो हमने इसको कंप्लीट CPU दे दिया तो ये 4 मिलीसेकंड्स तक एग्जीक्यूट होता रहा और 5 मिलीसेकंड्स तक 3 मिलीसेकंड्स तक तो सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं. उसके बाद हमने नॉर्मल SJF लगानी स्टार्ट कर दी यहाँ पे. फाइन. नाउ इन दिस पर्टिकुलर केस एवरेज वेटिंग टाइम थोड़ा सा अलग कंसेप्ट से निकलता है. आप कोई मर्जी बुक पढ़ लो, आपको कहीं भी नहीं बता रखा कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालना है इन द केस ऑफ प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग and जिस केस में हमें अराइवल टाइम गिवन है. So I have just made 2 more new columns which you need to require to make every time if you have the case of preemptive version or better to say अगर आपका अराइवल टाइम गिवन है. तो भाई एक वाला मैंने नया बनाया है यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम हमने पढ़ा था दिस इज द टोटल टाइम which any process requires. तो भाई अगर हम क्लिनिक वाले एग्जांपल की बात करें, कोई भी प्रोसेस सुबह जैसे ही क्लिनिक में आ जाता है 10 बजे आके बैठ गया, उसके बाद चाहे वो डॉक्टर से मिला हो, चाहे उसने वेट किया हो, चाहे वो एक्सरे कराने गया हो, जब तक वो सारा टास्क कंप्लीट नहीं कर लेता, वो सिस्टम से क्लिनिक से वापस घर नहीं चला जाता, तब तक उसका वो टाइम काउंट चलता रहेगा. एंड टर्न अराउंड टाइम हमारा सारे के सारे प्रोसेसेस टर्न अराउंड टाइम हमारा कंप्लीट टाइम होता है जितना भी टाइम उसने सुबह क्लिनिक पे आके बैठने से लेके शाम को घर जाने तक, जब तक वो क्लिनिक से वापस नहीं जाता सारा टास्क कंप्लीट करके, दैट इज द टर्न अराउंड टाइम. सो इन सारे न्यूमेरिकल्स के केस में यू हैव टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम. सो टर्न अराउंड टाइम देखो क्या हो जाएगा, जब भी कोई प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीशन टाइम माइनस जिस टाइम वो रैम में आया था, क्लिनिक में आया था. सो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज द टोटल टाइम स्पेंट बाय द प्रोसेस इन द एंटायर सिनेरियो. सो कंप्लीशन टाइम आपको कहां से पता लगेगा, गैंट चार्ट से. तो भैया जरा ध्यान से देखना, P1 प्रोसेस की बात करें तो P1 को एक बार CPU यहां मिला था सबसे फर्स्ट टाइम पे बिकॉज़ ये एक ही प्रोसेस आया था और उसके बाद इसको दोबारा भी प्रोसेस को P1 को CPU एलोकेट हुआ था. तो भाई जितने भी ब्लॉक्स आपके P1 के हैं, हो सकता है एक से ज्यादा P2 के भी बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपको क्वेश्चन कैसा गिवन है. तो भाई जो सबसे राइटर मोस्ट आपका ब्लॉक होगा किसी भी प्रोसेस का, उसका जो राइट वाला डिजिट है दिस इज द कंप्लीशन टाइम. तो भाई P1 प्रोसेस को जो कंप्लीशन टाइम है उसका वो 17 है एंड 17 और अराइवल टाइम कितना है P1 का, बताओ जरा देख के टेबल में से. 0. So 17 minus 0, so total time process P1 को execute होने में कितना लग गया 17, because एक तो उसने कहाँ लगाया होगा CPU पे, उसके अलावा उसने कहीं ना कहीं वेट की है रैम में. ठीक है. Then process P2 का total turnaround time is completion time of P2 minus arrival time of P2. P2 का completion time, P2 के ब्लॉक पे जाओ और उसका जो राइट हैंड साइड वाला डिजिट है 5. 5 is the completion time of process P2 and what about the arrival time? 1. 1. So 5 minus 1 is 4. Process P3 का turnaround time, total time उसको कितना लगा? So completion time minus arrival time. So completion time for process P3 is 26
and arrival time for process P3 is 2, so it is 24, isn't it? Then last process P4 complete कब हुआ 10 milliseconds पे, this is the completion time of process P4, and arrival time of process P4 is 3, so it is 7. क्लियर है सब लोगों को? व्हाट इज द कंसेप्ट? टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल टाइम। हर प्रोसेस को टोटल कितना टाइम लगा, चाहे वो रैम में रहा हो, चाहे उसने वेट की हो, चाहे वो सीपीयू पे गया हो, तो भाई टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। जब वो प्रोसेस आया था रैम में फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जब वो कंप्लीटली अपने सारे के सारे टास्क एग्जीक्यूट कर वापस चला गया रैम में, सो दैट इज द completion time minus arrival time is the turnaround time. Any doubt anywhere in this thing? How we have calculated this? No, Any sir. doubt? No. Okay. Last is the waiting time. तो भाई preemptive, non-preemptive के केस में थोड़ा सा अलग सिनेरियो था। अब waiting time निकालना, तो waiting time क्या होगा? जितना भी टोटल टाइम लिया उस प्रोसेस ने, उस टाइम में से जितना उसने सीपीयू को दे दिया एग्जैक्टली तो वही एग्जीक्यूट हुआ, उसके अलावा जितना भी टाइम उसने स्पेंड किया वो उसका वेटिंग टाइम था। तो वेटिंग टाइम आउट ऑफ टर्न अराउंड टाइम टी आउट ऑफ द टोटल टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। अपने टोटल टाइम में से उसने जितना टाइम सीपीयू के पास एग्जीक्यूट किया दैट इज ओके, लेकिन उसके अलावा जितना भी टाइम बचेगा that is the waiting time for that individual process. So we have to understand the things also. Turnaround time, completion time minus arrival time, waiting time, total time में से CPU वाला टाइम अगर हम माइनस कर दें तो बाकी सारा टाइम प्रोसेस ने क्या किया है, सिर्फ वेट करने में ही स्पेंड किया है। So turnaround time for process P1 हमने इसी कॉलम में कैलकुलेट किया 17. So burst time कितना है प्रोसेस P1 का 8 मिलीसेकंड। So 17 minus 8 कितना होगा? 9. So waiting time 9. Then P2 process का waiting time, turnaround time minus burst time 4 ही burst time है और 4 ही total time है, so it is 0. Then P3 process turnaround time is 24 and burst time for process P3 is 9. So 15 minus 24 minus 9 is 15. प्रोसेस P4 टोटल टाइम कितना लगा 7 मिलीसेकंड्स, और 7 में से उसमें सीपीयू बस कितना चाहिए था 5, तो भाई प्रोसेस P4 ने कितना वेट किया है 2 मिलीसेकंड्स। इज दिस क्लियर? यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूलाज और द स्टेटमेंट्स, देन यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक, एंड आई हैव जस्ट एडेड 2 न्यू कॉलम्स if we are having the case of preemptive scheduling, or better to say if we have arrival time. Is this clear to each and every one? Now waiting time of P1 is 9. Waiting time of process P2 is 0. Waiting time of process P3 is 15, and waiting time of process P4 is 2. Then what about the average waiting time? कितना आएगा? 9 plus 0 plus 15 plus 2 divided by 4. कौन बताएगा आंसर? 11 plus 15 is 26. 26 divided by 4. What is 26 divided by 4? 6.5. So the average waiting time in this particular case is 6.5 millisecond, and this is how you have to solve the complete numerical if the given case is preemptive scheduling. You have to make 2 more new columns, turnaround time and the waiting time, and I hope the concept is clear to you. तो भाई यहाँ से आप सारी चीजें वेरीफाई भी कर सकते हो। टर्नअराउंड टाइम प्रोसेस P1 को 17 मिलीसेकंड्स टोटल लगे, जिसमें से उसने 9 मिलीसेकंड्स तो वेट किया और 8 मिलीसेकंड्स उसने सीपीयू पर दिए। सिमिलरली P2 की बात करें तो उसका टोटल टर्नअराउंड टाइम, उसको टोटल टाइम ही 4 मिलीसेकंड्स लगे, और 4 में से उसने 4 के 4 ही सीपीयू के पास दिए, उसको वेट नहीं करना पड़ा। क्यों? अगर जरा ध्यान से इस टेबल को देखें तो प्रोसेस P2 किस टाइम आया था? अराइवल टाइम क्या है? 1 इज द अराइवल टाइम ऑफ प्रोसेस P2, और आते ही उसको सीपीयू एलोकेट हो गया था और उसने साथ के साथ अपने सारी इंस्ट्रक्शंस उन 4 मिलीसेकंड्स में एग्जीक्यूट कर ली थी। सो वही P2 प्रोसेस को बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। दैट्स व्हाई द
waiting time of process P2 is 0. Similarly, if we talk about P3, तो P3 ने total 24 milliseconds लगाए entire RAM में CPU के पास जाने में. उस 24 में से उसने 15 मिलीसेकंड तो वेट की है वेटिंग टाइम एंड 9 ही उसको CPU के पास टाइम चाहिए था. Similarly, if I talk about P4, total turnaround time is 7. Out of 7, 2 milliseconds wait किया and 5 milliseconds उसका CPU burst time था. So this is how we can solve this kind of numerical. तो भाई इन दोनों कॉलम में अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज आस्क. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हिच यू मस्ट रिमेंबर ईच एंड एवरी टाइम. Any doubt of any kind, turnaround time, completion time minus arrival time. Completion time आपका Gantt chart से मिलेगा, राइट साइड वाले डिजिट. अराइवल टाइम आपको टेबल में गिवन होगा. वेटिंग टाइम, टर्नअराउंड टाइम, टोटल टाइम में से जितना टाइम प्रोसेस ने सीपीयू को दे दिया दैट इज ओके. उसके अलावा जितना भी टाइम है वो सारा वेट किया है प्रोसेस ने, उसका वेटिंग टाइम होगा. सो टर्नअराउंड टाइम हम इससे पिछले वाले कॉलम में निकाल चुके होंगे. बर्स्ट टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. सो जस्ट आप सिंपली हैव टू सब्सट्रैक्ट द वैल्यू एंड वेटिंग टाइम का जब हम एवरेज निकालेंगे तो उनको ऐड करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस. So I hope this is clear. Any doubt, anyone? Just update me once. Okay. So No, sir. just now moving on to the slide, which also have the correct answer for this. Okay, so I hope the screen is now visible. So this is the question which was allotted to us, and you can see the 4 processes P1 to P4 and the arrival time for each process is given and the CPU burst time is there. अगर ये अगर ये नॉन प्रीएम्प्टिव होती तो अराइवल टाइम नहीं गिवन होता तो डेफिनेटली हम सबसे पहले P2 को ही चलाते बिकॉज P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो सबसे कम है. बट नाउ अकॉर्डिंग टू द अराइवल टाइम सबसे पहले 0th टाइम पे सिर्फ आया ही प्रोसेस P1 था तो हमें एक बार तो उसको ही CPU एलोकेट करना होगा. लेकिन हम उसको पूरा 8 मिलीसेकंड्स नहीं दे रहे, उसको पूरा 8 मिलीसेकंड्स तक एग्जीक्यूट नहीं कर रहे. 1 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट करने के बाद ही P2 प्रोसेस रैम में आ गया और P2 का जो बर्स्ट टाइम था वो 4 है जबकि P1 का तब तक 7 रह जाएगा. सो 7 और 4 में से 4 लेस होगा तो हम 4 दे देंगे P2 को. तो P2 विल बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली बिकॉज बाकी किसी भी प्रोसेस का जो भी बर्स्ट टाइम था वो हमेशा P2 के बर्स्ट टाइम से ज्यादा ही रहेगा. सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड दिस इज हाउ दे हैव कैलकुलेटेड एवरेज वेटिंग टाइम. तो भाई बुक में या कहीं भी आपको नहीं गिवन है कि इन्होंने कैसे सॉल्व किया है. दे जस्ट हैव 10 - 1 1 - 1 17 - 2 5 - 3 कहां से आया कैसे आया नथिंग इज मेंशन्ड. सो दिस इज द प्रॉपर सिनेरियो व्हिच आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड यू ऑन द बोर्ड. ये 3 कॉलम्स आपको गिवन है प्रोसेस, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम और इसके अलावा टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम का बना सकते हो. और भी अगर आपको थोड़ा सा कई स्टूडेंट्स को डाउट रहता है तो आप पहले यहाँ पे कंप्लीशन टाइम, हर एक प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम का भी एक कॉलम बना सकते हो. तो यहाँ पे प्रोसेस P1 के कंप्लीशन टाइम की बात करें तो यहाँ पे प्रोसेस P1 है तो इसका कंप्लीशन टाइम 17 है, P2 का 5 है, P3 का 26 है और P4 का 10 है. तो मैंने अभी बताया कि कंप्लीशन टाइम जितने भी ब्लॉक्स होंगे किसी प्रोसेस के सबसे राइटर मोस्ट ब्लॉक पे जाके उसके राइट डिजिट वाला डिजिट आपको देखते हैं दैट इज द कंप्लीशन टाइम. सो अगर कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन डेफिनेटली यू विल जस्ट सॉल्व इन very quickly. So it is just the matter of the practice. So completion time बना सकते हो, उसके बाद turn around time which is completion time minus arrival time, and in the last you can make a column waiting time. So waiting time will be total time में से CPU burst time हम minus कर दें, so that will be the waiting time. And after getting the waiting time we can have the average waiting time. So this was the question. 26/4 was the answer and the average waiting time here is the 6.5 milliseconds. So I am just stopping here, and this is the very interesting concept or the scenario which we have learned today. And in the next lecture we will talk about the priority scheduling and round